Welcome students, this is your very own Mukesh sir. Welcomes all of you. Okay, today I have brought for you a question. If alpha and beta are the zeros of a polynomial, it is a quadratic polynomial. As you can see, x square minus 2x plus 3. Find a polynomial whose roots are number 1 alpha plus 2 comma beta plus 2, and third one alpha minus 1 upon alpha plus 1 comma beta minus 1 beta plus 1. You have to find a polynomial whose roots are, this is your first root, this is your second root, and from these two roots you have to find a polynomial equation. And again in the second question, you have to find a polynomial whose roots are number 1 alpha minus 1 upon alpha plus 1. This is your first zero, and your second zero will be beta minus 1 divided by beta plus 1. Okay, if you like to give a try, then pause this video and give a try, and I recommend that you must give a try. Okay, and let's start. The first question. First, the polynomial px is given x square minus 2x plus 3. Okay, till class 9, whatever polynomial is given, especially quadratic polynomial, it can be easily factorized by midterm splitting method. If it can be factorized by midterm splitting method, then we can easily find its zero, that is means it's alpha and beta. Okay, if it can be splitted by midterm factorization, then we can easily find alpha and beta. अगर ये आराम से मिड टर्म से स्प्लिट हो जाए तो इसके अल्फा और बीटा हम आराम से निकाल सकते हैं, नहीं? लेकिन देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर c कितना है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -2. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है. दिस कांट बी मिड टर्म स्प्लिटेड है ना. अगर ये रहता, अगर ये प्लस के जगह माइनस होता तो हम इसको बहुत इजीली मिड टर्म से स्प्लिट कर लेते. कैसे स्प्लिट करते? इसको ऐसा लिखते और उसके बाद इट विल बी इजी फॉर अस. ये बहुत आराम से हो जाता है. बट हैव अ लुक ना, बट दिस कांट बी मिड टर्म स्प्लिटेड है ना. इसको मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. काफी लोग पहली बार इस तरह क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये चीज पहली बार गौर किए होंगे. अगर आप जानते हो तो काफी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है. दिस कांट बी मिड टर्म स्प्लिटेड, नो इशू, बट वी हैव द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस दैट वी नो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x upon minus the coefficient of x square, this minus b by a. Our b is -2, b become +2, and our a is 1, that is alpha plus beta becomes 2 now. And alpha into beta is equal to c by a, that is 3 upon 1, that is 3 now. We get the value of alpha plus beta and alpha into beta. We have to find number 1, we have to find a polynomial whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2 now. Have a look now. For first question now, zeros are alpha plus 2 and beta plus 2 respectively. Okay, first now we are going to find sum of the zeros. Sum of zeros, that is alpha plus 2, your first zero, and second zero is beta plus 2. इसके जीरोस ही हो गए. जैसे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे अल्फा बीटा, तो एक न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके जीरोस ही हैं अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2. तो पहले क्या फाइंड करते हैं? सम ऑफ द जीरो, बाद में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब बाद में जनरल फॉर्म में उसको पूर्ण कर लेंगे. अब बोलो सम ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4. वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2 plus 4, that is 6. Now we get the sum of the zeros. Sum of zeros. Okay, moving next part, that is product of zeros.
अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जीरो है अल्फा प्लस 2 और सेकंड जीरो है बीटा प्लस 2। जस्ट सॉल्व इट, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 2 4, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज 3, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज 2 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4 that is 11. We get product of zeros. We get product of zeros. Product of zeros is equals to 11. Any problem? No. आगे बढ़ते हैं, काफी इजी है। नेक्स्ट, we know polynomial px is equals to some constant k, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, product of zeros। तो बस पता है हमको, किसी पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कोई कांस्टेंट के बाहर निकाल के, ठीक है, के x square sum of the zeros, its value is 6, product of zeros 11, आंसर आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम? ये बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया, इसका जीरोस कितना है, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है ना। सिंस डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, टेकिंग k इक्वल्स टू 1, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेकिंग k इक्वल्स टू 1 it becomes x square minus 6x plus 11, आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड पार्ट, zeros are alpha minus 1 divided by alpha plus 1 into beta minus 1 divided by beta plus 1, okay। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट गिवन पार्ट से ये इस्तेमाल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सेकंड क्वेश्चन के लिए इस फर्स्ट पार्ट से ही इस्तेमाल करेंगे, गिवन पार्ट से, ठीक है, ये गिवन सेक्शन से इस्तेमाल करेंगे। नाउ अगेन पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। You have to find a polynomial equation whose first zero is this much and second zero is this much ना। तो फर्स्ट द सम ऑफ द जीरोस, तो दोनों जीरोस को ऐड करते हैं, प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे बेटा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, थोड़ा सॉल्व करना होगा इसको, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1, आप भी पैरेलली सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। जगह अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट, अल्फा बीटा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, अल्फा बीटा 2 बार है, ठीक है, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 3। नाउ माइनस 1 मींस माइनस 2, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा is 3, alpha plus beta 2, alpha into beta 3, alpha plus beta 2 plus 1, value becomes it becomes how much now, 3 6 plus 4 upon 6, that is 2 upon 3, okay। तो मिल गया हमको सम ऑफ दी जीरोस मिल गया, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं उसी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये पहला जीरो ये दूसरा जीरो, दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू 3, इसे माइनस कॉमन निकालेंगे, वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 दैट इज 1/3। ठीक है, तो सम ऑफ दिस जीरोस मिलेगा कितना 2/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिलेगा कितना 1/3। ठीक है, देख लोगे आगे। नेक्स्ट इसका काम खत्म। हेंस px क्या होता है बेटा मेरा k इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है। k सम ऑफ द जीरोस इज 2/3, x प्रोडक्ट 0 1/3 हो गया। 3 एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये खत्म हो गया आंसर आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसको ठीक करने के लिए, आप जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए डिनोमिनेटर कितना है 3, k इक्वल्स टू 3 ले लिए, 3 कट जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे 10th के बाद तो इस तरह क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मिल सकते हैं। 10th के बाद किसी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जाओगे या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे तो इस तरह क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आप देखोगे। ठीक है, एंड लाइक इट, शेयर इट, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।